Assalamualaikum students. As per your suggestion, I am going to start solving MCQs with you in a voiceover. Hope this will be easy for you now to understand the MCQs more efficiently and you can also memorize them more properly. Unit number 10. Today we will discuss activity and exercise pattern. Question number 1. Define terms mobility, joint mobility, body alignments and body mechanics. Number 2. Discuss the benefits of activity and exercise. Number 3. Identify the principles of gravity that affects balance. Number 4. Discuss factors affecting mobility. Number 5. Discuss the effects of immobility in human body. Number 6. Review anatomy and physiology of musculoskeletal system and characteristics of normal movement. Number 7. Describe the impact of immobility on physiological and psychological functioning. Number 8. Apply nursing process while planning for the client with altered musculoskeletal system. Let's start the MCQs. MCQs number 1. The ability to move freely, easily, rhythmically and purposefully in the environment is called A. Lapse, B. Mobility, C. Inertia, D. Migration. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि किसी पर्सन की एबिलिटी कि वो इन्वायरमेंट में आजादाना तौर पे रिदमिकली या किसी स्पेसिफिक पर्पस के थ्रू मूव करता है तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी. MCQs number 2. The degree to which an articulation where two bones meet can move before being restricted by surrounding tissues is called A. Joint mobility, B. Activity, C. Alignment, D. Mechanics. क्वेश्चन में जॉइंट की बात कर रहे हैं कि वो कितनी डिग्री तक आर्टिकुलेट कर सकता है अपने सराउंडिंग टिश्यूज जिसमें मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स आ जाते हैं उससे रिस्ट्रिक्टेड हुए बगैर. तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड जॉइंट मोबिलिटी. MCQs number 3. It is coordinated effort of the musculoskeletal and nervous system to maintain balance, posture and body alignment during lifting, moving, positioning and performing activities of daily life is called A. Body alignment, B. Body mechanics, C. Body movement, D. Body joinment. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम और हमारे मसल्स और स्केलेटल सिस्टम की जो मुश्तरका एफर्ट होती है कि हमारी बॉडी का बैलेंस, पोस्चर और अलाइनमेंट को मेंटेन करें जब हम डेली लाइफ की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, जब हम मूव कर रहे हो, लिफ्टिंग कर रहे हो या पोजीशन अपनी चेंज कर रहे हो, तो इस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट को हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड बॉडी मैकेनिक्स. सो बी ऑप्शन इज राइट. MCQs number 4. Which is effect of immobility on musculoskeletal system? A. Dependent edema, B. atelectasis, C. Renal calculi, D. Disuse atrophy. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे मसल्स और हमारे स्केलेटल सिस्टम पर इमोबिलिटी यानी मोशनलेस होने का क्या इफेक्ट होता है. अगर कोई पर्सन इमोबाइल है, ठीक है, तो उसके मसल्स और स्केलेटल सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? इन ऑप्शंस में अगर देखें हम तो डिस्यूज एट्रोफी राइट ऑप्शन है. डिस्यूज एट्रोफी का मतलब है कि मसल्स की एट्रोफी हो जाती है जिसमें मसल्स का साइज कम हो जाता है. सो डी इज द राइट ऑप्शन. MCQs number 5. Principles of body mechanics are A. The wider the base of support, the greater is the stability. B. The lower the center of gravity, the greater is the stability. C. The equilibrium of an object is maintained as long as the line of gravity passes through its base of support. D. All of the above. बॉडी मैकेनिक्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. इस क्वेश्चन में हमसे प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा जा रहा है. ए ऑप्शन है द वाइडर द बेस ऑफ सपोर्ट. बेस ऑफ सपोर्ट क्या होता है? अगर कोई पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उसकी फीट जितना एरिया कवर कर रहे हैं जमीन पर वो उसकी बेस ऑफ सपोर्ट होगा और वो जितना वाइड होगा एरिया उतना ही ज्यादा वो पर्सन स्टेबल खड़ा होगा. सेकेंड ऑप्शन में है द लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर बॉडी मूव करती है, पाइवट करती है इन ऑल डायरेक्शंस में और उसका का सारा वेट उस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा होता है. ठीक है, वो कह रहे हैं द लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी. ठीक है. सी ऑप्शन है द इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेंटेन्ड एज लॉन्ग एज द लाइन ऑफ ग्रेविटी पासिस थ्रू इट्स बेस ऑफ सपोर्ट. किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम उस वक्त तक मेंटेन होगा जब तक उसकी लाइन ऑफ ग्रेविटी पास करेगी बेस ऑफ सपोर्ट से. लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होती है?
ये एक वर्टिकल लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करती है बॉडी के, ठीक है। और जब तक ये बेस ऑफ सपोर्ट से पास करेगी तब तक उस बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। ये तीनों ऑप्शन जो है राइट हैं, सो वी क्लिक ऑन दी डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। MCQs number 6. The point where weight is equally distributed on all sides, from this point a body can pivot in any direction and remain balanced is called A. Center of gravity, B. Line of gravity, C. Center of support, D. Base of support. वो पॉइंट जिसके ऊपर बॉडी का सारा वेट एक्ट कर रहा है और उस पॉइंट के सराउंडिंग में जितना भी एरिया है वहां पे उस बॉडी का वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस पॉइंट के ऊपर बॉडी जो है वो किसी भी डायरेक्शन में पाइवट कर सकता है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ए इज द राइट ऑप्शन। MCQs number 7. Effect of immobility on cardiovascular system of human body. A. Orthostatic hypertension. B. Diminished cardiac reserve. C. Dependent edema. D. All of the above. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर इमोबिलिटी का क्या इफेक्ट होगा। ए ऑप्शन है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इससे मुराद है कि पोजीशन चेंज करने से बीपी का फॉल कर जाना। बी ऑप्शन है डिमिनिश्ड कार्डिक रिजर्व, जब एक इमोबाइल पर्सन कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता तो उससे उसकी हार्ट पर वर्कलोड इतना नहीं होगा जिससे कार्डिक आउटपुट उस पर्सन में कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि फिर कार्डिक रिजर्व भी ऑटोमेटिकली डिमिनिश होगा उस पर्सन में। सी है डिपेंडेंट एडिमा, एक पर्सन जो इमोबाइल है ज्यादातर सिटिंग पोजीशन में होता है, अगर वो लेग्स को हैंग करके बैठा है अर्थ की तरफ तो क्या होगा कि उसकी बॉडी का पूरा फ्लूइड और ब्लड जो है वो उसकी लेग्स में पुल डाउन कर जाएगा, उसकी पुलिंग हो जाएगी, ठीक है, जिससे लेग्स में एडिमा कॉज होगा। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन ही राइट नजर आ रहे हैं हमें, तो हम क्लिक करेंगे डी ऑप्शन पे, ऑल ऑफ द अबव। MCQs number 8. The nurse is instructing a 66-year-old female client diagnosed with osteoporosis. The most important instruction regarding exercise would be to A. Exercise doing weight-bearing activities. B. Avoid exercise that increase the risk of fracture. C. Exercise to reduce weight. D. Exercise to strengthen muscle and thereby protect bones. क्वेश्चन में हमें बता रहे हैं कि एक 66 ईयर की ओल्ड फीमेल क्लाइंट है जिसको ओस्टियोपोरोसिस डायग्नोज्ड हुआ है, तो कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के हवाले से उसे इंस्ट्रक्शन दी जाएगी? द ए ऑप्शन, एक्सरसाइज डूइंग वेट बेयरिंग एक्टिविटीज इज ट्रू, क्योंकि वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो ओस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं और बोन को मजीद लॉस होने से उसका बचाती हैं। दिस इज द राइट ऑप्शन। MCQs number 9. Which statement best describes the effect of immobility in children? A. Immobility prevents the progression of language and fine motor development. B. Children are more susceptible to the effects of immobility than are adults. C. Immobility in children has a similar physical effects to those found in adults. D. Children are likely to have prolonged immobility with subsequent complications. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि चिल्ड्रन में इमोबिलिटी का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट उसको ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करती है। सो इसका राइट ऑप्शन है सी, इमोबिलिटी इन चिल्ड्रन हैज सिमिलर फिजिकल इफेक्ट्स टू दोज फाउंड इन अडल्ट्स। अडल्ट्स में क्या इफेक्ट आते हैं? मसल एट्रोफी, कॉन्ट्रैक्चर्स, स्किन ब्रेकडाउन, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, बोन डिमिनरलाइजेशन और सेकेंडरी इफेक्ट्स आते हैं हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, रेस्पिरेटरी एंड रीनल सिस्टम पर, ठीक है, और इसी तरह से सिमिलर इफेक्ट्स आते हैं चिल्ड्रन में। सो सी इज द राइट ऑप्शन। MCQs number 10. An 80-year-old female patient has been bedridden for 2 weeks. Which of the following complaints by the patient indicates to the nurse that he is developing a complication of immobility? A. Short-term memory loss. B. Soreness of the gums. C. Decreased appetite. D. Stiffness of the right ankle joint. इसमें राइट ऑप्शन है डी, स्टिफनेस ऑफ द राइट एंकल जॉइंट। स्टिफनेस ऑफ ए जॉइंट जो होता है वो इंडिकेट करता है बिगनिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्चर एंड अर्ली मसल एट्रोफी। सो डी इज द राइट ऑप्शन। MCQs number 11. This type of exercise involves short bursts of energy without oxygen. A. Aerobic. B. Anaerobic. C. Dynamic. D. Static. So the right option is anaerobic. Anaerobic exercise is a type of exercise that break down glucose in the body without using oxygen. So B is the right option. MCQs number 12.
Running, swimming and biking are what kind of activity? A. Dynamic, B. Static, C. Aerobic, D. Anaerobic. रनिंग, स्विमिंग और बाइकिंग जो है क्योंकि इनमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, सो ये एरोबिक एक्टिविटीज हैं. सो सी इज द राइट ऑप्शन, एरोबिक. MCQs number 13. Which of the following best motivates patient to participate in an exercise program? A. Giving information on exercise to the patient. B. Explaining the importance of exercise when patient is diagnosed with a chronic disease. C. Providing information when patient is ready to change the behavior. D. Following up with instructions after the healthcare provider tells a patient to begin an exercise program. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राइट है, कौन सा ज्यादा बेस्ट है जो कि पेशेंट को मोटिवेट करेगा कि वो एक्सरसाइज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करे. सो सी इज द राइट ऑप्शन, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन व्हेन द पेशेंट इज रेडी टू चेंज द बिहेवियर. जब पेशेंट इस स्टेज पे होता है कि वो अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए रेडी होता है तो वो हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार होता है. ठीक है, तो सी इज द राइट ऑप्शन. MCQs number 14. Which of the following is a principle of proper mechanics when lifting or carrying objects? A. Keep the knees in a locked position. B. Bend at the waist to maintain center of gravity. C. Maintain a wide base of support. D. Hold objects away from the body for improved leverage. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि मैकेनिक्स का वो कौन सा प्रिंसिपल है जो हम ऑब्जेक्ट को लिफ्ट या कैरी करते हुए फॉलो करते हैं. ठीक है, तो सी इज द राइट ऑप्शन, मेंटेन अ वाइड बेस ऑफ सपोर्ट. हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की अगर बेस ऑफ सपोर्ट वाइड होगी तो वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा और हम उस ऑब्जेक्ट को उतनी ही आसानी से कैरी कर लेंगे. ठीक है, तो सी इज द राइट ऑप्शन. MCQs number 15. A patient on week-long bed rest is now performing isometric exercises. Which nursing diagnosis best addresses the safety of the patient? A. Risk for activity intolerance. B. Impaired skin integrity. C. Disturbed thought process. D. Disturbed body image. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि एक पेशेंट जो कि एक वीक के लिए बेड रेस्ट पे रहा है, ठीक है, और वो अब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने लगा है, तो नर्स के लिए क्या बेस्ट डायग्नोसिस होगा जो कि उसकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए वो बनाएगी. ठीक है, सो ए इज द राइट ऑप्शन, रिस्क फॉर एक्टिविटी इंटॉलरेंस. क्योंकि वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए बेड रेस्ट पे रहा है, सो उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होने का चांस होगा जिसकी वजह से उसको एक्टिविटी इंटॉलरेंस का रिस्क होगा. दिस इज राइट ऑप्शन. MCQs number 16. A patient is restricted at the wrists at intervals. She is flexing her arms, pulling against the restraints tied to the bed. Technically, what type of exercise is this? A. Aerobic. B. Isotonic. C. Isometric. D. Anaerobic. क्वेश्चन में हमें बता रहे हैं कि एक पेशेंट है जो कि रिस्ट के पॉइंट पे रिस्ट्रिक्टेड है रिस्ट्रेंट से और वो अपनी आर्म्स को पुल करती है अगेंस्ट दी रिस्ट्रेंट. तो वो किस टाइप की एक्सरसाइज परफॉर्म कर रही है? सो राइट ऑप्शन इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज क्या होती हैं? जो कि आमतौर पर इमूवेबल सरफेस के अगेंस्ट परफॉर्म की जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने हैंड को प्रेस करें अगेंस्ट ए वॉल या फिर पुल करें अपने रिस्ट को अगेंस्ट ए सिक्योर रिस्ट्रेंट, सो दिस इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज. सी इज द राइट ऑप्शन. MCQs number 17. In addition to proper positioning, which of the following would be an important nursing measure for a patient who is immobile? A. Encouraging a low calcium diet to prevent kidney stones. B. Limiting fluid intake so she does not have to use the bedpan as frequently. C. Encouraging the patient to lie still so he does not cause a blood clot to become dislodged. D. Performing a skin assessment to dependent areas at least once every shift. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि एक इमोबाइल पेशेंट की प्रॉपर पोजीशनिंग के अलावा हमें कौन सी दूसरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग मेजर परफॉर्म करनी चाहिए. सो डी इज द राइट ऑप्शन, परफॉर्मिंग अ स्किन असेसमेंट टू डिपेंडेंट एरियाज एट लीस्ट वंस एवरी शिफ्ट. हमें हर शिफ्ट में कम से कम एक बार पेशेंट की स्किन की असेसमेंट लाजमी करनी चाहिए ताकि हम पेशेंट को बेड सोर से बचा सकें. ठीक है, सो डी इज द राइट ऑप्शन. MCQs number 18. A nurse turns a patient's ankle so that the sole of the foot moves medially towards the midline. Which word should the nurse use when documenting exactly what was done during range of motion exercises? A. Adduction. B. Inversion. C. Plantar flexion. D. Internal rotation.
नर्स ने पेशेंट के एंकल को इस तरह से मूव किया है कि उसका 16 फुट जो है वो मीडियली टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी मूव करता है। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है? मूवमेंट की एक ऐसी टाइप होती है जिसमें एंकल और फुट जो होता है ना वो बेंड हो जाता है टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। MCQs number 19. A patient is obese, wants to lose weight and start exercising. She complains of fatigue with activity. Which of the following intervention would be appropriate for this patient? A. Consult her primary care provider prior to starting a fitness program. B. Increase her level of activity within her daily routine. C. Refuse with protein and carbohydrate within 45 minutes of her work. D. All of the above. क्वेश्चन में हमें बता रहे हैं कि एक ओबीज पेशेंट है जो अपना वेट को लूज करना चाहती हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए फिटीग का सामना करना पड़ रहा है। तो कौन सी इंटरवेंशन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है उनके लिए? ए ऑप्शन है कंसल्ट करें वो अपनी प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से फिटनेस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले। बी है इंक्रीज करे हर लेवल ऑफ एक्टिविटी को अपनी डेली रूटीन में। सी है रिफ्यूज करे विद प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डाइट को। ठीक है, डी है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ऑप्शन ही राइट हैं, सो वी क्लिक ऑन दी डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। MCQs number 20. A patient has hemiplegia as a result of a brain attack. Which complication of immobility is a concern to the nurse? A. Dehydration. B. Contracture. C. Hypertension. D. Incontinence. क्वेश्चन में हमें बता रहे हैं कि एक पेशेंट को स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक की वजह से हेमीप्लेजिया हो गया है, उसकी वन साइड ऑफ द बॉडी पैरालाइज हो गई है। तो नर्स को इमोबिलिटी की कौन सी कॉम्प्लिकेशन के लिए कंसर्न शो करना चाहिए? सो द राइट ऑप्शन इज कॉन्ट्रैक्चर बी। कॉन्ट्रैक्चर क्या होते हैं? शॉर्टनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ मसल, टेंडन्स और अदर टिश्यूज which lead to deformity or rigidity of the joints. So this is the right option. MCQs number 21. A nurse is performing range of motion exercises for a patient who is in supine position. Which motion occurs when the nurse bends the patient ankle so that the toes are pointed towards the ceiling? A. Dorsal flexion. B. Plantar flexion. C. Supination. D. Adduction. क्वेश्चन में हमें बता रहे हैं कि नर्स जो है एक क्लाइंट की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस परफॉर्म करा रही है और वो क्लाइंट क्या है? स्पाइन पोजीशन में है। ठीक है, नर्स क्या करती है? उस पेशेंट के एंकल को बेंड करती है, इस तरह से बेंड करती है कि उसकी जो टोज हैं वो पॉइंटेड हो जाती हैं टुवर्ड्स द सीलिंग, मतलब छत की तरफ जाती हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा जो फुट होता है उसकी अपर सर्फिस को हम डॉर्सल सर्फिस और जो लोअर सर्फिस जो कि जमीन से टच होती है उसको हम प्लांटर सर्फिस कहते हैं। जब नर्स ऐसा करेगी तो उसकी टोज जो होंगी ना वो छत की तरफ पॉइंटेड हो जाएंगी। इस मूवमेंट को हम डॉर्सल फ्लेक्शन कहते हैं। ए इज द राइट ऑप्शन। MCQs number 22. A nurse is caring for a patient with impaired mobility. Which position contributes most to the formation of a hip flexion contracture? A. Spine. B. Sims. C. Orthopenic. D. Low followers position. क्वेश्चन में हमें बता रहे हैं कि एक नर्स जो है वो एक पेशेंट की केयर कर रही है जिसकी मोबिलिटी इंपेयर्ड हो चुकी है। तो उस पेशेंट की कौन सी ऐसी पोजीशन होगी जो कि हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर काज करेगी? हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है? इसमें हिप की फ्लेक्शन हो जाती है 10 डिग्री तक और पर्सन की एबनॉर्मल गेट हो जाती है। इसका राइट आंसर है ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ऑर्थोपेनिक पोजीशन क्या होती है? ये एक सेमी वर्टिकल और अपराइट पोजीशन होती है जिसमें पिलोज की मदद से पेशेंट के हेड और चेस्ट को सपोर्ट दिया जाता है ताकि उसका ऑर्थोपनिया रिलीव हो, यानी उसकी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग रिलीव हो जाए। ठीक है, इस पोजीशन में बैठने की वजह से उसको हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है। MCQs number 23. A nurse raises a patient's arm forward and upward over the head during range of motion exercises. Which word should the nurse use when documenting exactly what was done during this range of motion exercise? A. Flexion. B. Supination. C. Pronation. D. Opposition. नर्स ने पेशेंट के आर्म को फॉरवर्ड और अपवर्ड ओवर द हेड मूव किया है, तो ये कौन सी मोशन है? क्या डॉक्यूमेंट करेगी नर्स? दिस इज द फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या है? फ्लेक्शन आर्म की वो मूवमेंट है जिसमें आर्म जो है एंटीरियरली और अपवर्ड मूव करता है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन।
MCQs number 24. A nurse is caring for a variety of patients, each experiencing on the following problem. Which health problem places a patient at the great risk for complications associated with immobility? A. Confusion, B. Hemiparesis, C. Quadriplegia, D. Incontinence. क्वेश्चन में हमें बता रहे हैं कि नर्स जो है वेराइटी ऑफ पेशेंट्स की केयर कर रही है, तो इमोबाइल पेशेंट को कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम जो है सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट रिस्क पे लेकर जाएगी. सो दिस इज दी क्वाड्रिप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ द ऑल फोर लिम्स. दिस इज आल्सो कॉल्ड टेट्राप्लेजिया. दिस इज द राइट ऑप्शन. MCQs number 25. Which nursing action is most effective in relation to the concept immobility can lead to occlusion of blood vessels in areas where bony prominences rest on a mattress? A. Encouraging the patient to breathe deeply 10 times per hour. B. Performing range of motion exercises twice a day. C. Placing a sheepskin pad under the sacrum. D. Reposition the patient after every 2 hours. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि एक इमोबाइल पेशेंट के लिए सबसे बेहतरीन नर्सिंग एक्शन क्या होगा. सो डी इज द राइट ऑप्शन. रीपोजिशन द पेशेंट आफ्टर एवरी 2 आवर. हर 2 घंटे के बाद इमोबाइल पेशेंट की पोजीशन चेंज करना उसको सबसे ज्यादा फायदा देगा. ठीक है, सो डी इज द राइट ऑप्शन. Students, that's all about the MCQs of unit number 10, activity and exercise pattern. Hope you will get clear concepts about these MCQs. If you find the video helpful, then please subscribe the channel to get notification about new videos. Thank you, take care and Allah Hafiz.